नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है जो नॉन साइंस के लोग करते हैं. Some of the example here, causal comparative. We know the cause and effect, right? But many a time candidate comparison में नहीं करता है. से वो बोलेगा कि study of e-commerce buying of Nagpur district. But if we compare that with a Pune or एक मिनट, अगर वो कंपेयर करता है तो then analysis become rich. Second is a survey, which we often conduct it, whether we do it to the primary data or whether we actually go and conduct the survey itself. There हम लोग sample और census का इस्तेमाल करते हैं. Sample होते हैं census. Is one case study. This is again a very popular form of non-experimental research जहाँ in-depth case study दी जाती है. Also the longitudinal approach जहाँ हम time series based, geography based, then correlation, historical. These are some of the types, not all, but some of the common types of non-experimental research that we see. Now, research basically are of two types that we all know, quantitative and qualitative. So quantitative, as we know, it is based on data and subject to the analysis by statistical tool. What we try to prove under quantitative is that the truth is out there. सच्चाई कहीं तो है और वो हम डेटा गैदर करके टेस्ट करके उस सच्चाई के पास जाने की कोशिश करते हैं. On the contrary to that, qualitative. Here, instead of statistical tool, mostly the data is analyzed by informed judgment, जिसमें रिसर्चर का बायस आ सकता है. So that leads to a phenomena called multiple truth. Say for example, if in Nagpur, if I wanted to study how many female residents of Nagpur are interested in purchasing the white color two-wheeler. So I conducted a study over a month and I found that 27% female riders in Nagpur city on major intersections prefer white as a preferred color. Now, can I apply this to say Indore, to Aurangabad, Pune, Ahmedabad? The answer is no, because my focus was primarily on one specific geography. तो इसीलिए क्वालिटेटिव में आपको मल्टीपल ट्रूथ मिलेगी. जैसे you ask Nagpur people what they prefer for quick breakfast, most answer will be samosa kachori. You ask similar question in Mumbai, 100% answer will be vada pav, right? So qualitative will have the multiple truth because it is through the informed judgment, the analytical part. ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हम साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं. Just quickly, the qualitative is text based, quantitative is number based. Qualitative, no statistical test. Quantitative, you have the statistical test. Qualitative, there is an in-depth information. In quantitative, the depth is not, but the breadth is more. Qualitative is less generalizable. Quantitative is more generalizable. Okay. Now, most importantly, qualitative things or methods are inductive process used to formulate a theory or hypothesis. वो मैं आगे वाले स्लाइड में आपको बताऊंगा इंडक्टिव और डिडक्टिव में. Here you try to formulate a theory. Say for example, मैं जब इंडिया में आके अभी 10 साल हो गए, I was amused to say that observe that
एवरी ईयर 10th एंड 12th में मेरिट में आने में लड़कियों का परसेंटेज बढ़ रहा है. So I analyzed the data across the India, across all the districts, across villages, and I found out that yes, these are the reasons why the girl students are becoming meritorious. इसका मतलब ये हो गया क्या लड़के अचानक कम इंटेलिजेंट हो गए? नहीं, but it is an opportunity, the importance and the ability to execute is shown very well by the female student. So I form a theory, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. वो क्वालिटेटिव मेथड से आप थ्योरी फॉर्मुलेशन या हाइपोथेसिस पे बहुत आसानी से पहुंच सकते हो. ऑल्दो इट इज अ टीडियस वर्क, बट इट इज प्राइमरी. Quantitative, on the other hand, is a deductive process. It is used to test pre-specified concept. Say I wanted to challenge the Newton's theory of gravity. Okay, so basically I conducted an experiment. I also had my own hypothesis, and then at the end I realized that no, I cannot challenge the theory of gravity. I have to agree with what Newton has said. So quantitative is basically a deductive research होता है. अब second important part is in quantitative or planning an experiment, the time expenditure is very heavy. But the moment experiment is done, the analysis बहुत जल्दी होता है. क्वालिटेटिव में एग्जैक्ट उल्टा होता है. आपका प्लानिंग में समय कम लगता है, बट उसका एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है. एंड दैट्स व्हाट मेक बोथ दीज टू इक्वली कॉम्पिटेंट. और हम जब पीएचडी का रिसर्च करते हैं या एनी अदर रिसर्च करते हैं, वी ऑलवेज हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. अनलेस अगर हम कोई एक्सक्लूसिवली थ्योरी फॉर्मुलेशन पे जा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी को चैलेंज करने आ रहे हैं, then you can have either of the method, but most of the time we combine both qualitative and quantitative. So this is what was mentioned in the previous slide. Only thing which I do not agree is on the sample. दोनों में भी adequate sample लगते हैं. ऐसा नहीं है कि qualitative में आप small sample से पहुंच जाओगे और quantitative में आप large sample. नहीं, both requires adequate number of samples to justify it, right? Now, जैसे हमने अभी देखा डिडक्टिव और इंडक्टिव. सो डिडक्टिव का मतलब है यूजिंग अ लॉजिक फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. जो मैंने आपको बताया कि मैंने ऑब्जर्व किया लड़कियां मेरिट में आ रही है, तो इट इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन, बट लॉजिक लेके मैं उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थ्योरी पे लेके गया. इट इज यूज फॉर जनरेटिंग हाइपोथेसिस और थ्योरीज इन द रिसर्च. डिडक्टिव याद रखो, जनरल टू स्पेसिफिक, जी टू एस असं डोक्यात ठेवायचं. उसका उल्टा है इंडक्टिव. इट इज फ्रॉम एस टू जी. And here the conclusions are drawn based on many specific observation, right? जैसे ग्लोबल वार्मिंग, तो दो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं उसके ऊपर. सो whosoever is making the observation, जैसे आपने देखा होगा कल ही 2 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था which was very interesting. उन्होंने बोला विदर्भ मराठवाड़ा के लिए इस टाइम विंटर मार्च तक जाएगा. इट विल एक्सटेंड अप टू मार्च. और उसी आर्टिकल में लिखा था पूरे इंडिया में जो रबी फसल होती है उसमें कम उगाई होगी क्योंकि वार्म टेम्परेचर जनवरी से चालू होगा. सो आई वाज लिटिल बिट पजल्ड कि ये आर्टिकल में ऐसा क्यों लिखा है कि इंडिया में जनवरी से टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, बट विदर्भ मराठवाडा में मार्च तक थंड रहेगी. क्योंकि हम तो, तुम्हाला माहिती आहे का आपल्याकडे थंडी कुठून येते? जरा मला जनरल नॉलेज चेक करू द्या बरं. ठंड कहाँ से आती है अपने यहाँ? ठंडी कहाँ से आती है अपने यहाँ विदर्भ में या इंडिया में फॉर दैट मैटर? मैं ऑडियबल हूँ? मेरी आवाज आ रही है आपको? ईस्ट साइड से. ईस्ट साइड से, ओके. और मुझे स्पेसिफिक आंसर चाहिए. देखो आप में से कई लोग टीचर होंगे, बच्चों को ज्ञान देते होंगे, राइट?
आप लोग अभी डॉक्टर बनने वाले हो, मेरे को बेसिक फिनोमिना मालूम होना चाहिए. ओके, देयर इज अ अर्ज टू नो एवरी सिंगल थिंग. नॉर्थ से आती है, नॉर्थ से आते हैं. और दीजिए जवाब. और जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिलेगा मैं और बोलते जाऊंगा. और आपके जवाब बराबर है बट मुझे परफेक्ट जवाब चाहिए. और वो कोरिस क्या, कौन से हाँ, फोर्स है, कोरिस, व्हाट, आई एम नॉट गेटिंग राइट. ओके, फेयर इनफ. और कहाँ से आती है? So Himalayas. हिमालयस. हिमालय. क्या हमें वाकई में हिमालय से ठंडी आती है या हम हिमालय से बचते हैं? बचते हैं, मराठीत बोलतो. बचते हैं सर, जेव्हा हिमालय से बचते हैं. जेव्हा सायबेरियातले थंड वारे येतात, ते थंड वारे अडकवायचं काम हिमालय करतं. सो बेसिकली हम ठंड से बचते बिकॉज ऑफ बचते हैं. हिमालय. अगर हाँ, हिमालय नहीं होता तो आपका उत्तरी भारत बहुत ठंडा और ड्रॉट प्रोन हो जाता. हमको हिमालय के दो फायदे हैं. एक तो हमको वो ठंड से बचाता है और दूसरा वो हमें दो नदियों का बड़ा उगम स्थान है, ब्रह्मपुत्र और गैंजेस, जिससे कि दुनिया का 4.3% ड्रिंकिंग वाटर हमारे देश में जो खेती और पीने और इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये आउट ऑफ द टॉपिक में जा रहा हूँ. आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. जब आपको अगर रिसर्चर बनना है ना, यू शुड नो ऑल द फैक्ट. सो ये जो ठंड आती है, जो कोई साइबेरियन विंड्स क्रॉस करते हैं हिमालय को, वो आते हैं तेलंगाना तक मैक्सिमम. आप नीचे जाओगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक टू सर्टन एक्सटेंट, वहां क्यों नहीं होती है ठंड या क्यों कम होती है? उसकी वजह सी बीचेस है, वहाँ पे ह्यूमिड है. वही कोल्ड वेव्स वहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं. आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर. कोल्ड वेव वहां पहुंच नहीं पाती सर. लैटिट्यूड, नहीं लोअर सर, लैटिट्यूड है. नहीं. हमको मानसून कहाँ से मिलता है? साउथ वेस्ट. राइट, आपने टीवी पे देखा होगा ना, साउथ वेस्ट मानसून आता है अरेबियन से. हाँ, वेस्ट, हाँ, वेस्ट साउथ साइड से. वेस्ट नीचे यस. से ऊपर आता है, केरला से ऊपर आता है, साउथ वेस्ट बोलते हैं उसको हम. हम्म. नवंबर के महीने से बे ऑफ बंगाल में दूसरा मान्सून, त्याला नैऋत्य मोसमी म्हणतात मराठीमध्ये. माझं मराठी खूप पक्क झालंय. We faced the second so-called direction of winds where the water or the rain formation occurs from November and December and January in the southern India, or in the Bay of Bengal rather, which has an impact on southern India. So ये जो cold winds होते हैं, इनको वो counteract करता है और इसीलिए आपको साउथ में चिलिंग ठंड नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां मॉन्सून फॉर्मेशन हो जाता है सेकंड फेज का. नैऋत्य मोसमी वारे ज्याला म्हणतात. अगर आपने आज का वेदर मैप देखा होगा तो अगले मंडे को नागपुर में बारिश है, क्योंकि ऑलरेडी एक साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आ रहा है जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को हिट होने वाला है, तेलंगाना में हिट होने वाला है. एनीवे, ये सब मालूम होना चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर टू वर्ड दैट आई सेड, पैशनेटली क्यूरियस. इफ यू वांट टू नो इन डेप्थ. जस्ट डू नॉट नो इट ऑन सरफेस. आप किसी को पढ़ाने वाले हो, आप किसी को शेप करने वाले हो, राइट? सो किसी को ज्ञान देने से पहले अपना घड़ा पहले भर के रखो. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव is basically a scientific method. Okay, so here there is a theory of gravity. So I postulated an experiment, formulated hypothesis, and I checked with the reality whether Sir Isaac Newton was correct or not correct, right? Exactly opposite is I started observing girls coming into merit 10th and 12th. So I built a hypothesis. What could be the reason for that? I tied up all these hypotheses and I gave a very general explanation, and I come out with Beti Bachao Beti Padhao theory. Inductive, deductive. Clear? ये जाने दीजिए. ये
आपके इसका नहीं है रिसर्च ओनियन, ये रिसर्च फिलोसॉफी का पार्ट है, सो जस्ट आई विल स्किप इट। फिलोसॉफी मैं स्किप करता हूँ, ये आपको हेवी हो जाएगा और ये आपके लिए बना भी नहीं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। नाउ कमिंग टू द लिटरेचर, हाउ डू वी वर्क विद द लिटरेचर? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इट। लिटरेचर मतलब क्या? किताबें, ब्लॉग, research paper, magazine, journals, whatever it may be. Find which is suitable to your topic. Okay. Then using those resources and honing your research skill. Always use scholar.google.com. अभी कई सारा डेटा स्कॉलर, गूगल स्कॉलर में है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या रिसर्च किया जा रहा है। देयर आर मेनी रिसर्च फोरम्स इन द वर्ल्ड, उसके पार्ट बनिए, वहां से भी आपको कई सारा सेकेंडरी लिटरेचर मिल सकता है। Once you get it, you have to read it efficiently. एडोबे में टूल्स आते हैं जहां पे आप पोस्ट इट नोट, आपके नोट कमेंट करके प्रिंट आउट मत लीजिए, ऑनलाइन पढ़िए, उसका रेफरेंस और ट्रैकिंग कीजिए, और वो पढ़ने के बाद A4 पेजेस पे खुद लिखना चालू कीजिए विथ एनोटेशंस कि वो क्या कह रहा है। मैं कई बार लिटरेचर रिव्यू के बारे में भी पढ़ाता हूँ, लोकांना कळतच नाही की सर लिटरेचर रिव्यू पास्ट टेन्स मध्ये लिहायचा की प्रेझेंट टेन्स मध्ये लिहायचा। लिटरेचर रिव्यूचा चैप्टर नेहमी पास्ट टेन्स में लिखा जाता है। रिसर्च में हर एक चैप्टर, हर एक स्टेप पे गलतियां होने के चांसेस होते हैं। मुझे आज तक 99.99 वाला कोई भी थीसिस, ना कोई गाइड, ना कोई शख्स, दो शख्स मुझे मिले जो AICT के चेयरमैन लेवल पे बैठे थे। आई हैवंट सीन देयर वर्क, बट आई लाइक देयर थॉट प्रोसेस एंड आई नो दे कैन बी अ ग्रेट रिसर्चर। सो वो मालूम होना चाहिए कि मैं कैसा, देन हाउ टू यूज इट। सो बेसिकली मेरा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, मेरा जो रैशनल है, वो कौन से थ्योरी के ऊपर मैच करता है, ऑन हाउ आई एम गोइंग टू डिजाइन माय ओन मेथड। आप जब रिसर्च मेथड लेते हो, जैसे मैंने ये UPMP का किया ना, मैंने ब्राजील स्टडी किया, मैंने अफ्रीका स्टडी किया, प्लस इंडिया स्टडी किया, एंड देन उसके बाद मैंने मेरा मेथड डिजाइन किया, राइट। जब तक आपका डेमोग्राफी और जियोग्राफी सेम है, यू कैन हैव दैट मेथड प्रीटी मच इंटैक्ट। जैसी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, से आई गो टू मुंबई, देन आपका जियोग्राफी डेमोग्राफी दोनों चेंज हुआ, सेम मेथड विल नॉट वर्क, आई विल हैव टू फाइंड अ न्यू मेथड, राइट। सो मेथड कैन ओनली बी डिटरमिन्ड बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम लिटरेचर। अभी आप मेरे को बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, मेथड तो हमने खुद बनाई है। अब बनाइए ना, बट अगर आपको एग्जामिनर ने पूछा कैन यू जस्टिफाई दिस मेथड, जनरली पूछते नहीं है, बट जब हम प्रोफेशनल रिसर्च करते हैं ना, जिसके हमें 10-15 लाख मिलते हैं 2 महीने के, वो पूछते कि व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर मेथड, सो वी हैव टू जस्टिफाई दैट, ओके, एंड देन रिव्यूइंग इट, राइट। उसका पर्पस क्या है, एडिक्वेट कवरेज आ रहा है क्या, आपके टाइटल में जो कीवर्ड्स है, आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो हाइपोथेसिस है, ये लिटरेचर उसको कवर कर रहा है कि नहीं। कोई भी सिंगल पेपर आपको कम से कम 200-250 चीजें देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसका फ्लेवर मिलेगा, एंड देन राइटिंग इट पर्पसफुली। लिटरेचरचा चॅप्टर हा स्वतः लिहावा लागतो बरं का, क्लिष्ट चॅप्टर असतो, और कई लोग नहीं लिखते, लिख पाते, एग्जामिनर नहीं देखता, सावळा गोंधळ आहे, मी सांगतो तुम्हाला रिसर्चच्या जगात। इट्स ओके, एंड देन वर्किंग ऑन द स्टाइल एंड टोन। आप कौन से स्टाइल से आपका रिसर्च आगे लेके जाना चाहते हो, और उसका टोन क्या होगा। उसमें दो चीजें, इधर आर यू गोइंग टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग फाइंडिंग्स, और आर यू टेकिंग अ वेरी ड्रैकोनियन और रेडिकल रूट टू लुक इनटू दैट सब्जेक्ट। पॉसिबल है, नोबडी कैन स्टॉप यू ना, राइट। सो एक मैं केस बताता हूँ, वन ऑफ द पेपर, research paper which I have seen with a very reputed doctor in Maharashtra. The title of that paper was the "Tobacco is not the cause of cancer." I was a bit amazed. So when I took that paper off the notice board and I started reading, I asked that doctor who wrote this paper. He said, "Number one oncologist in the world from John
हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटी. आता जगातला सगळ्यात मोठा कॅन्सर रुग्ण कॅन्सर तज्ञ म्हणतोय की तंबाखूनी कॅन्सर होत नाही. सो इट इज अ ड्रामेटिक रिवेलेशन, राइट? जैसे वो लखनऊ में वो डॉक्टर ने बोला कि पानी से डायबिटीज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स there is a lot of literature, lot of research behind before you write some papers like this. विचार तो आपका थीसिस में भी आपका स्टाइल और टोन डिपेंड करेगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. ये जनरल है, आई विल नॉट गो इनटू दिस, बट अभी जैसे कि मैडम ने आपको बताया कि आप सब लोगों ने कर चुके हैं, बट फिर भी आप ध्यान में रखिए फ्यूचर में व्हाई यू आर चूजिंग दिस सब्जेक्ट. वो एरिया जो था प्री एक्सप्लोर्ड प्रॉब्लम एरिया, क्या थे वो, आपका प्रॉब्लम एरिया उसमें से क्या होगा, आपके स्टडी के बाद कौन से नए एरिया ओपन होंगे, आपने प्रीवियस रिसर्च को स्टडी करके टाइटल बनाया है क्या, मेरा डिजाइन कैसा होगा और मेरा लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन क्या होगा. अब आपका जो टाइटल होगा या आपके जिस सिनॉप्सिस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होगा, एम, ऑब्जेक्टिव या आपके कीवर्ड, आपको एक एक कीवर्ड के लिए 20 आर्टिकल ढूंढना है. सो आपके टाइटल में, आपके ऑब्जेक्टिव में मान लो 4 या 5 वर्ड आ रहे, तो आपको कम से कम 100 आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे एंड यूजिंग द रिलेवेंट टाइम फ्रेम ओनली. ऐसा नहीं कि आप 1960 और 1970 का पेपर, अनलेस इट इज रिक्वायर्ड देन इट इज ओके 1 और 2, बट आपके सब पेपर 2005 के आगे के होने चाहिए. देन हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चन, देयर इज अ लिंकेज, राइट? सो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपने जो इशू अंडर स्टडी है क्या उसको डिफाइन किया है, रिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है और फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया हुआ है. मैं आपको एक रूल बताता हूं, ध्यान रखिएगा. टाइटल ऑफ योर थीसिस इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू हाइपोथेसिस. ये दिखता है कि नहीं चेक कर लो. अगर ये सब एक लाइन में दिख रहा है तो आप इंटेलिजेंट हो या लकी हो या फिर और कुछ हो. Sir, please repeat. Title of your thesis is equal to statement of problem is equal to aim is equal to objective is equal to hypothesis. एक लाइन पे होने चाहिए. मैं अगर कोई रिसर्च देखता हूँ ना, मैं ये पहले देख लेता हूँ कि सामने वाला कितने पानी में है, और मेजॉरिटी लोग पानी में रहते हैं, मेजॉरिटी, राइट? Very few people. It's not your blame because nobody has trained you in the field of research. You just came for your own objective to register and get this degree. I don't know how many of you would really like to be researcher, but those who want to do a full-time research, these are the very important building blocks. Then, do you need fact, figure, statistics? इंट्रोडक्शन का चैप्टर कितना लंबा होना चाहिए? क्या आपका इंफॉर्मेशन करंट होना चाहिए, राइट? आपको कितने डेप्थ में जाना है? आपको कोई कंफ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपके थीसिस में डालना है क्या? दैट यू हैव टू रैशनलाइज कि मैं क्या करना चाहता हूँ, राइट? देन सर्च के लिए अभी तो गूगल आ गया है, अल्मेनैक्स है, एनसाइक्लोपीडिया है, राइट? लाइब्रेरी में डेटाबेस है अपने नागपुर यूनिवर्सिटी के, राइट? एंड देन अटेंड दी कॉन्फ्रेंस. स्पेशली मैं साइंस के लोगों को बोलूंगा, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस होगी 5 साल में, अटेंड इट, go there, get all the data, material, listen to what those people are saying. It helps a lot, especially to science people. Then information. Say निखिल अटाले ने कुछ लिख दिया फार्मर सुसाइड पे. Am I the credible person? Am I the authority? The answer is no, right? So who got that paper? Where it was published? Was the journal peer reviewed? Was it scholarly? Was it authoritative? Or merely somebody's opinion from website? Data अभी इतना है दुनिया में
कि लोग आंख बंद करके डेटा लेते। इसका मेरे को भी एक एग्जांपल आया था, आई विल शेयर। एक बार एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में मैंने ब्राजील के एक इकोनॉमिस्ट का कोट किया था। रिव्यू में उन्होंने पूछा हु इज ही, क्या नोबेल प्राइज मिला है क्या? मैंने कहा नो, ही इज ओनली एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम ब्राजील। तो उनका ब्लॉक, तो गवर्नमेंट टुक ऑब्जेक्शन। मैं गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट, दे सेड नो, ही इज नॉट अथॉरिटी ऑन एग्रीकल्चर का मैटर था वो, डेयरी एंड एग्रीकल्चर। दे आस्क्ड मी टू रिमूव इट इवन विद साइटेशन। दे सेड नो, उनका नाम मत डालिए, ये थोड़ी कोई कुरीस वर्गीय है ब्राजील के जिन्होंने अमूल चालू किया। सो मेनी अ टाइम यू कीप इन माइंड, आता तुमच्या पीएचडी मध्ये इतक्या इनडेप्थ मध्ये कोण जातं मला माहित नाही, तुमचा एक्झामिनर जातो की नाही, पण चांगली सवय आत्ताच लावा। वो राम नाम जपना परायमाल अपना नहीं, सब डाल दिया, नहीं। दैट पर्सन हैज टू बी अथॉरिटी ऑन दैट टॉपिक, राइट? एंड दैट जर्नल शुड फॉल इनटू दीज क्राइटेरियाज। सो जो थीसिस की डेफिनेशन है ना, जनरली एक्सेप्टेड, it is a written product of systematic study of significant problem. The finished product evidences originality, critical and independent thinking. हे महत्वाचा है, आपका थीसिस पढ़ते समय मुझे आपका इंडिपेंडेंट थिंकिंग दिखना चाहिए, appropriate organization and format and thorough documentation. It creates new knowledge, extends existing knowledge. ये ध्यान में रखो। जब आपका होगा थीसिस, आज से 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, क्या ये चीजें दिखती है उसमें, अपने आप को सवाल पूछो। मुझे ऐसा कोई गाइड करने वाला था नहीं, पर मैं कहता हूँ 80% चीजें मेरे थीसिस में मुझे दिखती है, मुझे किसी ने नहीं बताया था, राइट? सो इट शुड रिफ्लेक्ट दैट। ये फॉर्मेट आप आपके यूनिवर्सिटी से करो। जनरली चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड लिटरेचर रिव्यू होता है, मेथड होता है, result discussion, whatever it is, whatever your PhD cell says, follow that format. So in conclusion, we can say that understanding of basic research is an important step towards selection of research method. आपने कौन से मेथड को अडॉप्ट किया है आपके थीसिस में, उसके लिए आपको बेसिक रिसर्च मालूम होना चाहिए। अगर आपको वो पैरामीटर्स मालूम है तो आपकी मेथडोलॉजी 90% करेक्ट आएगी। Second, information is the key aspect of your research. All it is driven by data and information. So keep it simple yet focused. Simple रखिए, ज्यादा complicated मत बनाइए और focus रखिए, right? So again Einstein said, person who never made a mistake never tried anything new. चुका करा, शिका, परत त्या रिपीट नका करू चुका, राइट? तो ये हो गया अपना पहला सेशन। मैं आपको अभी 5 मिनट का टाइम देता हूँ, आपके कोई क्वेश्चंस होंगे हम लेंगे, वी हैव इनफ टाइम। आपके सवाल अभी इससे क्लियर कर लो, देन वी कैन गो टू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अभी इसके ऊपर कोई डाउट हो तो पूछ लो। आहेत का काही डाऊट? काही कळलं नाही, काही आर्ग्युमेंट आहेत, काही सहमत नाही? सर वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का बताइए ना, वो कौन सा टेंस में लिखना चाहिए? रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। हम क्या करते हैं, एखादे आदमी ने एखादे टॉपिक पे काम किया है तो हिज मेथड वाज दिस, हिज डिजाइन वाज दिस, हम वो रिव्यू करके ही पास्ट में लिखते हैं ना। जैसे अगर मैंने आपको Yes. गोवा भेजा और बोला गोवा में जाके आओ और एक उसके ऊपर ऐसे लिखो, तो आप बोलोगे ना, Yes. द बीचेस वेर वेरी क्लीन, द ट्रैफिक वाज नॉट Yes. देयर, द फूड वाज डिलीशियस। पास्ट टेंस में लिखते हो ना। प्रिडोमिनेंटली लिटरेचर रिव्यू का मेजर पार्ट ये पास्ट में लिखा जाता है। आपका खुद का जो थिंकिंग होता है, आपने वो स्टडी करके आप क्या करना चाहते हैं, वो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, आपका पार्ट, ओके सर। है ना? मतलब Okay. शाहरुख खान ने ऐसी एक्टिंग की, सलमान खान ने ऐसी एक्टिंग की, सो ये फिल्म में मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा। गॉट इट? ये लिटरेचर रिव्यू है। Yes, sir. Okay, हम्म, thank you. हम्म। विचारा, अजून प्रश्न विचारा। क्लियर? अरे शर्माओ मत,
मैं तो सवाल पूछने के लिए बेबस रहता हूँ। मैं अभी भी, आई कॉल माई सेल्फ अ स्टूडेंट, मैं अभी भी सीखता हूँ, मैं अभी भी सवाल पूछता हूँ लोगों को। सवाल पूछने में कोई आपसे पैसे तो नहीं ले रहा, UPI ID या पेटीएम नसेल विचारलं म्हणजे मग तुम्हाला दोन, एक तर 100% कळलंय, नाही तर 100% नाही कळलंय. सो शैल वी मूव फॉरवर्ड? आप बोलो, अभी टाइम है अपने पास और 3-4 मिनट का टाइम है. यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इफ यू वांट. नाही आहेत प्रश्न? हाँ विचारा. ओके, so we'll move to the next topic, that is the theoretical framework. ये दिख रहा है आपको अभी? ये दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. दोन दोनदा विचारावं लागते का रे तुम्हाला प्रश्न? मग उत्तर देता का तुम्ही? आपण काय चंद्र आणि धरतीमध्ये कॉन्फरन्स कॉल करून राहिलो का? ओके, सो दिस इज लिटिल बिट टफ. The reason I say tough means according to me it is simple, but for many of you, you will find it difficult to digest. But I will make it more simpler so that you will understand it and probably able to use it in your thesis work. अब हमारे थीसिस में theoretical framework डालना मैंडेटरी नहीं है, अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है. बट जब आप प्रोफेशनल रिसर्च करते हो तब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डालना मैंडेटरी होता है, चाहे वो AICT का हो, चाहे वो ICMR का हो, चाहे कोई और एजेंसी का हो. दी एजेंसी एक्सपेक्ट कैंडिडेट टू पुट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन द रिसर्च प्रपोजल, जो कल हम डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाई फ्रेमवर्क is important. It is basically a collection of concepts. They are not exactly like theory, but more or less they are very close to. Theoretical work क्या कर रहा है? In determining what feature aesthetical relationship you are looking for. मतलब आपके टाइटल में जो कंसेप्ट्स है उनका इंटर रिलेशन, आपके टाइटल में जो कंसेप्ट में चीजें लिखी गई है उसमें से आप क्या मेजर करोगे, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट आप कौन सी स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप उसमें देखना चाहते हो. अब जब हम डिडक्टिव या थ्योरी टेस्टिंग स्टडी करते हैं, एक इंडक्टिव है एक डिडक्टिव है, तो उसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए. बट अगर हम एक्सप्लोरेटरी स्टडी भी कर रहे हैं जहां पे हमें कुछ पता नहीं है, तो वहां पे हमें एडिशनल जानकारी लेने के लिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है. अभी आप शाम को एक काम कीजिए, अपने थीसिस का टाइटल वो लेने का, और वो टाइटल में कितने कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करने का. आगे की बात मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा. अब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी थ्योरीज है दुनिया में, वो डिटरमिन करने का, मतलब जो कीवर्ड है आपके थीसिस के, एक एक कीवर्ड पे एक एक थ्योरी होगी, एक से ज्यादा होगी. देन उससे रिलेटेड कोई अगर मॉडल होगे या की कंसेप्ट होगे तो उसके ऊपर मैं लिखते जाऊंगा कि ये कीवर्ड के लिए ये थ्योरी है, ये कीवर्ड के लिए ये मॉडल है, ये कीवर्ड के साथ ये कंसेप्ट है. अब हम जब लिटरेचर रिव्यू के बाद डेफिनेशन लेते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं
जॉब सेटिस्फैक्शन की एक डेफिनेशन लेता हूं। तो जॉब सेटिस्फैक्शन की कई डेफिनेशन है, हजारों डेफिनेशन है। कोई बोलेगा पगार मिलता है तो जॉब सेटिस्फैक्शन, कोई बोलेगा इज्जत मिलती तो जॉब सेटिस्फैक्शन, कोई बोलेगा रिकॉग्निशन मिलता तो whichever definition I choose or any model which I choose will give me the direction for my research, and based on these choices I will build on my research down the road. हे कळलं का सांगा बरं मला ऑनेस्टली मी काय बोललो ते यस सर. कळलं ना? कारण ऑफलाईन मोड मध्ये मी तुम्हाला बनवून दाखवलं असतं ब्लॅकबोर्डवर, पण आय रिपीट इट. You take the title of your thesis, you underline the keyword. Once you underline those keywords, for each keyword, try to find out a theory in existence. It may be one or two significant theories. Try to see whether there are concepts related to those keywords. See whether they are interlinked, and then definitions that you are selecting in your research. Make sure that those definitions give you the right direction to your research and build on it. ये फाउंडेशन होता है, ये आर्किटेक्चर होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक रिसर्च का. अगर आपका आर्किटेक्चर का नक्शा अच्छा होगा तो आपका मकान अच्छा बनेगा. अगर नक्शे में गड़बड़ होगी तो फिर मकान कुछ साल में ढल जाएगा. ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है, once you make a theoretical framework, any examiner और any investigator जो है वो कन्विंस होगा कि आपका रिसर्च इज ग्राउंडेड ऑन अ साइंटिफिक थ्योरी. पढ़ का? यू कैनॉट डू द रिसर्च ऑन समथिंग जस्ट कमिंग आउट ऑफ द ब्लू, बट एवरी रिसर्च इज ग्राउंडेड ऑन सम थ्योरी which we call it as a scientific theory. आप अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हो तो उसकी भी थ्योरी है. नॉट ए सिंगल थ्योरी इज मिसिंग इन ऑल द रिसर्च. हर एक रिसर्च में होती है. अगर आपके टॉपिक में थ्योरी नहीं है तो फिर गड़बड़ है. ऐसा 99.999% नहीं होता, हमेशा थ्योरी होती है. सो इसका मेन जस्टिफिकेशन जो है वो आता है कि मेरा रिसर्च ये साइंटिफिक थ्योरी पे और किसी हवा से निकाले हुए आइडिया पर नहीं. नाउ अब जैसे मैंने बोला जॉब सेटिस्फैक्शन एनालिसिस, कस्टमर लॉयल्टी, रिस्क रिटर्न, इनका के थोड़ा मैनेजमेंट के कुछ वर्ड है. अगर आपके टाइटल में ऐसे कोई कंसेप्ट आते हैं, इसको कीवर्ड भी बोलते हैं हम, देन लिंक, मेक श्योर दैट दे आर लिंक टू टाइटल, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड हाइपोथेसिस. ये लिंक होने ही चाहिए, होने ही चाहिए ये लिंक. अगर आपका कीवर्ड या की कंसेप्ट लिंक नहीं हो रहा है हाइपोथेसिस को, तो आपने हाइपोथेसिस बनाने में गड़बड़ की है. बट अगर एम ऑब्जेक्टिव को लिंक हो रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिंक हो रहा है, टाइटल को हो रहा है, फाइन. बट इंपॉर्टेंट इज हाइपोथेसिस. अब आपका हाइपोथेसिस तो बन गया है. नाउ सबसे पहले आपको लिटरेचर में जाके देखना ये कंसेप्ट को लोगों ने कैसा डिफाइन किया है. दूसरे रिसर्चर लोगों ने प्रत्येक कन्सेप्टची व्याख्या वेगळी असते डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक अँड डिपेंडिंग ऑन द परसेप्शन ऑल्सो. मग क्रिटिकली कंपेयर दिस डेफिनेशन दैट डिफरेंट ऑथर हैव प्रपोज्ड. मैंने कंपेयर की कि जॉब सेटिस्फैक्शन की डेफिनेशन रिचर्ड की ये थी, ब्रायन की ये थी, विलियम्स की ये थी, एंड देन चूज द डेफिनेशन दैट बेस्ट सूट्स योर रिसर्च एंड जस्टिफाई. अगर आपको विलियम की डेफिनेशन पसंद आई, उसको एज इट इज लेना है तो लो, उसको मॉडिफाई करना है तो वो भी लो, और बताओ आपने विलियम की क्यों ली. देन important to indicate if there is a notable link between these concepts. मतलब आपके टाइटल में जो कीवर्ड्स है या कंसेप्ट्स है उसमें कोई नोटेबल लिंक है क्या, वो भी आपको लिटरेचर में या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में बताना जरूरी होता है. देन जैसे मैंने बोला कि कोई थ्योरी या मॉडल आपके कंसेप्ट से जुड़ती होगी तो आप उसे डिस्क्राइब कीजिए और ये भी बताइए आप उसे क्यों और क्यों नहीं आपके रिसर्च में इस्तेमाल कर रहे हो तो क्यों
नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं, दोनों को इलेबोरेट करना पड़ता है। ये पीएचडी के थीसिस में कोई नहीं करता, ये जरूरी भी नहीं है, पर मैंने देखा आज तक जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में मैंने सेशन लिए, पहली दूसरी बैच जो थी 2018-19 की, बेहतरीन लोग अगले दिन मुझे बना के दिखा देते, सर आणि बनवलाय बघा, टाकणं मॅन्डेटरी नाहीये पण जर तुम्ही प्रयत्न केला तर बनतं, आणि बनलं तर ते चैप्टर नंबर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी के पहले पेज पर डालना है। अगर मैं आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देख लूं तो मुझे समझ गया, आपका बाकी कोई चीज देखने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही आपको बोलेगा सूटेड फॉर ग्रांटिंग पीएचडी डिग्री इमीडिएटली। सो ये अगर आप कोई थ्योरी या मॉडल ले रहे हो तो उसको डिफाइन करो, क्यों डाल रहे हो या क्यों नहीं डाल रहे हो। देन डिस्क्राइब व्हाट डिस्कशंस ऑन द सब्जेक्ट एग्जिस्ट विद इन द लिटरेचर। कस्टमर लॉयल्टी पे क्या चल रहा है लिटरेचर में, वो कंसेप्ट कैसा चेंज होते आया 1940 से लेकर 2010 तक। देन व्हाट मेथड थ्योरी मॉडल अदर ऑथर्स हैव अप्लाइड, उन्होंने क्या किया। इन डूइंग सो ऑलवेज आर्ग्यू व्हाई अ पर्टिकुलर थ्योरी और मॉडल इज नॉट appropriate फॉर योर ओन रिसर्च। विलियम ने वो किया तो ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मैं गरीब एरिया में, बैकवर्ड एरिया में काम कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। देन एनालाइज द similarity and differences between your own research and earlier study, कि 80% सिमिलर है, 30% सिमिलर है, 40% सिमिलर है, and explain how your study add knowledge that already exists on the subject। यहाँ पे 10 लाख पेपर ये टॉपिक पे अवेलेबल है, पर मेरे स्टडी से क्या मैं 10 लाख 1 कर सकता हूँ या 10 लाख 15 कर सकता हूँ, क्या नॉलेज ऍडिशन हो रहा है, हे पटतंय ना तुम्हाला, हे असं झालं पाहिजे माहिती का, आणि हे सिनॉप्सिस बनवायच्या पासूनही झालं पाहिजे। आता आपण लग्न झाल्यावर बघतोय की वधूवर कशी शोधायचे, हा हा प्रकार चालतो सगळ्या विद्यापीठात। देन theoretical framework can also be used to further analyze existing finding and hypothesis। इसको छोड़ दो, ये ऊपरी लेवल की बात है, या अपने अभी रिसर्च के काम की नहीं। It may be used to formulate and evaluate hypothesis of your own, which you can later test either during quantitative or qualitative research। कई बार आपको टीएफ बनाते बनाते आप हाइपोथेसिस भी इवैल्यूएट कर सकते हो, which is quite a big task but needs lot of effort, and referring every item to notable researcher column wise। आप कीवर्ड एक कॉलम में डालो, रिसर्चर एक कॉलम में डालो, डेफिनेशन एक कॉलम में डालो, हे करता है पण जनरली टिंगू भुंकायचं नाही। अभी तक वो शांत बैठे मेरे 2 बच्चे, अभी बिल्लियां चिल्ला रही ना, वो ना भुंकायचं नाही बेटा। Generally we prefer to draw using the graphic, or it can be written in a 5 page A4 pages by paragraph। लिखना बहुत डिफिकल्ट जाता है, जनरली इसको हम ग्राफिकली बनाते हैं एरोज और पॉइंटर के हिसाब से। एक सैंपल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको बताता हूँ। थॉमसिन नाम के आदमी ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एक मॉडल बनाया। नाउ कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे काय मला सांगा बरं, व्हॉट डू यू मीन बाय सॅटिस्फाईड कस्टमर? They have to satisfy their wants and needs according to their utility. Okay, want, need, utility, excellent। or yeah, it's 80% cover everything। or if there is a specific need, if the experience is very good, if whatever he expect are met, all his expectations are met, then he becomes a satisfied customer, right? So what he did, Thomasin, he chose 4 parameters that चार्मी said कि नागपुर में गुजराती फाफड़ा यहाँ अच्छा मिलता है। So I went and I tried Gujarati fafda based on what Charmi said to me। Second, personal need। I need specific type of pan, I need specific type of vada pav, so I go to one particular shop। Past experience, मैं 3 साल पहले जबलपुर रोड पे रुका था, वहां पे वो खाना खाया था, वो अच्छा था, मैं बार बार वहां गया। एंड देन मैंने टीवी पे ऐड देखा है कि वो कौन सी बिरयानी का ऐड आता है टीवी पे, वो भैरूज,
मैंने बहरूज बिरयानी का एड टीवी पे देखा और मैं बहरूज की बिरयानी खाया, मुझे वो अच्छी लगी. नाउ दीज आर दी 4 पैरामीटर, देयर कुड बी 100 बट ही selected 4. What he said, the value proposition. वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब आपने देखा होगा ये दिवाली के टाइम ये बिग बिलियन डे और फेस्टिवल डे सेल चलते हैं ना, आपको अगर लगता है मुझे कम पैसे में ज्यादा वैल्यू मिलती है तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कॉर्नर स्टोन होता है, फाउंडिंग पिलर. सेकंड, इट शुड आल्सो मीट योर नीड एंड एक्सपेक्टेशन एंड योर एक्सपीरियंस शुड बी प्लेजेंट. सो व्हाट ही did, he chose experiences, need, expectation along with value proposition and he measured it on a weekly basis and then he determined the customer satisfaction. कळलं? हे इतकं सोपं आहे. आता तुम्ही म्हणाल सर हॅपीनेस असाच मोजतात का? मोर और लेस असाच, पण हा 10-20 टाइम मोठा होऊन जातो याचे पॅरामीटर. त्याच्यात 60-70 पैरामीटर है. बट हियर आप बोलोगे सर वीकली क्यों, मंथली क्यों नहीं, डेली क्यों नहीं? यू कैन चूज एनी टाइम फ्रेम यू वांट बिकॉज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. मुझे बताओ, अगर आप चंद्रपुर गए, ऑन द रोड आप रुके कहीं पे, आपने चाय पी, आपने नाश्ता किया, मैंने पूछा आर यू सेटिस्फाइड, आप बोलोगे हाँ, आप चले गए. आप जिंदगी में वापस चंद्रपुर कभी नहीं जाने वाले. कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी होता है जब वो रिपीटेटिवली उसी सर्विस को लेता है. गॉट इट? आप अगर एक ही ब्रांड का रिचार्ज करते हो मोबाइल में, या एक ही ब्रांड का टीवी है आपके घर में, या एक ही ब्रांड का आपके पास टूथपेस्ट है या वॉशिंग पाउडर है, देन बाय रिपीटेटिवली यूजिंग इट यू विल बिकम अ लॉयल कस्टमर, अ सेटिस्फाइड कस्टमर, राइट? सो ये है होमेसिन का टीएफ. इतना सिंपल ग्राफिकली बनता है, आप ऐसे ही बना सकते हैं. अब आप बोलोगे सर ये थ्योरी वेरी कहाँ गई? एक्चुअली इसमें थ्योरी डालना जरूरी था. ये सब कंसेप्ट है, इंटर रिलेशन इसने दिखा है, बट यू कैन मेक इट मोर ब्यूटीफुल देन दिस. नाउ दूसरा पार्ट है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. नाउ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये एग्जिस्टिंग थ्योरी पे होता है. से फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, व्हाटएवर, देयर आर n number of theory. Conceptual framework is something you can develop yourself based on this theory. मेरे पीएचडी के थीसिस में लास्ट चैप्टर में मैंने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डाला था, जिसके ऊपर मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था. सो यू कैन डेवलप. नाउ द क्वेश्चन इज टीएफ सिमिलर एज ए सीएफ? द आंसर इज yes and no also. Why it is yes? Because you inevitably would use some, if not all, the concept that this particular theory operate with. मतलब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपको 2/3 तो थ्योरी का पार्ट मिलेगा, बचा हुआ आपने मॉडिफाई किया है 1/4. सो वो थ्योरी बेस की होगी. सेकंड, in your conceptual framework you can add your own concept, construct variable that you think are relevant and then proceed to explore or test the relationship between them. So basically all empirical research is based on assumption. Even purely descriptive or exploratory study involve the choices about the phenomena and variables to observe and the level of detail with which to observe. अगर मैं गैलेक्सी या यूनिवर्स स्टडी कर रहा हूँ, सो मैं कितने डिटेल में कौन से लेवल पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड इट्स अबाउट द फिनोमिना, इवन ग्लोबल वार्मिंग, राइट? सो एनी रिसर्चर हु इज प्लानिंग एन एम्पिरिकल स्टडी, they always have difficulty, right? Or they confront these challenges of making this assumption explicit. कि मैं इसको explicit कैसे करूं, इसको critically examine कैसे करूं, and designing the investigation that will yield him the data that will permit those assumptions to be evaluated and modified appropriately. मतलब उसने कुछ एक सोचा assumption पे, डेटा कलेक्ट किया और एंड में उसने देखा कि मैं ये एजम्पशन को इवेल्युएट या मॉडिफाई कैसे करूं. से फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला 10 ग्राम चावल, 15 ग्राम दाल, आधी चपाती 20 ग्राम की खाने से मेरे को इतनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है जिससे मेरा एक दिन कटता है ये एक्टिविटी करके. अगर
मुझे ये देखना है कि मेरे ये एजम्पशन मेरे कैलोरी से अगर रिलेटेड है और एक्टिविटी कैलोरी से रिलेटेड है, तो मैं इसको कैसे एग्जामिन करूं क्रिटिकली, ताकि मैं ये एजम्पशन को चैलेंज कर सकूं. जैसा आपने कोविड के टाइम देखा था की नाकामध्ये सुंठाची पावडर टाका, कोरोना येत नाही, वाफ घ्या, कोविड होत नाही. ये एक्सप्लिसिट एजम्पशन थे, क्योंकि उस समय जो वायरल इन्फेक्शन था, वो सबको मालूम था रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, म्हणजे नाकाच्या माध्यमातून तो श्वासनलिकेत जातो. तो लोगों ने नाक से रिलेटेड जितने आइटम थे, सब आइटम पे अपने एजम्पशन लगाना चालू कर दिए. राइट नाउ मेनी ऑफ दोस एजम्पशंस हैव प्रूव्ड रॉन्ग. ओके, दी वाफ घेऊन काही कोविडचं इन्फेक्शन होऊ शकत नाही. यू कॅन प्रिव्हेंट कोविड फ्रॉम एंट्री. वाफ घेतल्यामुळे लोकांचे नोझल पॅसेजेस खराब झालेत एक्सेसिव स्किनिंगमुळे. सो जब आप एक्सप्लोरेशन स्टडी करते हो, तो आपको एजम्पशन चैलेंज करने के लिए क्रिटिकली आपको इवेल्युएट करना पड़ता है, अदरवाइज वो मॉडिफाई नहीं होंगे. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ थ्योरी कंस्ट्रक्शन. आता गंमत काय होतं की आप बोलोगे सर रिसर्च तो थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है, बट कई बार जब आप थ्योरी कंस्ट्रक्शन मोड में जाते हो, राइट, तो ये चैलेंजेस आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से ओवरकम करने मिलते हैं. और जो प्रपोजल फॉर ग्रांट, जो कल हम बात करेंगे, बहुत सारे रिसर्च में ये सब चीजें नहीं होती है, जिसमें थ्योरेटिकल रैशनले दिया नहीं जाता है कि वो ये रिसर्च टॉपिक ये थ्योरी पे क्यों कर रहा है, उसका रैशनले वो कैंडिडेट नहीं देता है, तो उसका ग्रांट प्रपोजल रिजेक्ट होता है. राइट. सो today even the TF remains implicit in the proposal without being formally approved. अगर आपने बनाया नहीं ना, तो वो आपके अंदर है, बट आप अगर उसे बना के दिखाओगे, तो आपके इवेल्युएटर को पता चलेगा कौन से कंसेप्ट्स है, कौन से इंटर रिलेटेड है, कौन सी थ्योरी है, कौन से टूल्स यूज करेगा, क्या मेजर करेगा. राइट. सो consequently, even though the application may be based on good idea, it is conceptually weak and receives a poor priority or impact score. आइडिया अच्छी है, राइट, बट कंसेप्चुअली वो वीक है, तो उसको भी आपके ग्रांट प्रपोजल से हटाया जाएगा. सो दैट इज इट. बेसिकली तुमचा थेरॉटिकल फ्रेमवर्क हे थेरीवर बेस्ड असतं. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज ऑल्सो बेस्ड ऑन थेरी, बट मॉडिफाइड बाय द रिसर्चर टू सर्टन एक्सटेंट. राइट. सो इसको हम ग्राफिकली, जैसा टोमेसिन का दिया था, ग्राफिकली हम उसे बना सकते. एवरी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज करेक्ट. उसको कैसे करना है, आपका टाइटल आप लिखो, कीवर्ड जो है वो रेड कलर के पेन से कीवर्ड को अंडरलाइन करो, हर एक कीवर्ड की एक या दो डोमिनेटिंग थ्योरी उसके ऊपर लिखो. देन कंसेप्ट हो गए, तो वो इंटर रिलेटेड कहाँ है वो लिंक करो, और वो कंसेप्ट में आप क्या मेजर करने वाले हो, डैश 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 नीचे लाइन खड़ा करके वो लिखो, और उसमें से आप कौन सी रिलेशनशिप देखने वाले वो लिखो. तुमचं थेरॉटिकल फ्रेमवर्क तयार. हे तुम्ही जितके वेळा कराल ना, ते पुरणपोळी है, जितने बार बनाओगे उतने बार अच्छी बनती है, उसका टेस्ट एनहांस होता है. तो ये आप पहले बार करोगे, तकलीफ होगी, और मैं अभी इसका मास्टर नहीं, बट मेरा कमांड आ गया इसके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि ये, सो यू बेसिकली गेट मोर कॉन्फिडेंस. आपकी थेरोटिकल फ्रेमवर्क से गलतियां ना के बराबर होती है रिसर्च में. ये जो फ्रेमवर्क, ये जो लक्ष्मण रेखा होती है, तो आप डेविएट नहीं होते. तो मुझे नागपुर का नहीं पता, बट महाराष्ट्र में कई यूनिवर्सिटियों में आपका सिनॉप्सिस पीछे जोड़ना पड़ता है थीसिस के. तो वो एग्जामिनर देखता है कि आपने सिनॉप्सिस में क्या लिखा और थीसिस में कहाँ डेविएट हुए. अगर डेविएशन ज्यादा रहा, तो आपको रीराइट करना पड़ता पूरा थीसिस, तो वो भी आएगा. और कैंडिडेट सब लोग डेविएट होते हैं. आपको अगर डेविएट नहीं होना होगा, तो आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लगता है, और वो आपका समय और पैसा दोनों बचाता है. इसलिए ग्रांटेड प्रपोजल में ये मैंडेटरी होता है. यू कांट हैव अ लग्जरी ऑफ लूजिंग टाइम और मनी.
आता सांगा काही प्रश्न आहेत का? आपल्याकडे 10 मिनिटं आहेत, भरपूर मिनिटं आहेत. आता विचारा प्रश्न. Sir, हम्म, sir, my topic is a study of life skills in selected autobiographies of 20th century. स्टडी ऑफ लाइफ स्किल, Life skills, LIVE या LIFE, LIFE, life skills, लाइफ स्किल्स इन सिलेक्टेड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ 20th 20th century. century. Yes, sir. So I selected 4 autobiographies of Booker T. Washington, Hmm. Mahatma Gandhi, Dalai Lama, and Hmm. Nelson Mandela. Why you have only selected these 4? This is a a journal. This is only a autobiography. Whatever the autobiography of a person, that is not matter. It's life skills through autobiographies. So that That is means the- you wanted to comment on the life skills of these 4 gentlemen through their autobiography, right? Now, Then- the 4 person you have selected, are Yes. they similar to each other in respect, or are they different to each other in aspect? What do you think? I think they all are similar in their respective field. Hmm. All of them motivated masses. Hmm. All of them are considered as a role model in their Hmm. particular arena. Hmm. For example, for black, Booker T. Washington is the hero of the black. Nelson Mandela, that is the same story, and our national hero Mahatma Gandhi, and the freedom in exile was Dalai Lama. Hmm. Okay, All are so yeah, I got it. So what you expect the outcome to be? outcome. You will be highlighting the common life skills of these 4 gentlemen, or you will be highlighting also the different aspects of their life skills in Common life context skills. to what common life skill, in context to what Common. role they played in their lives, right? Yes, sir. Today, for example, WHO Hmm. listed 10 core life skills, Hmm. such as decision making, problem Hmm. solving, Hmm. critical thinking, creative thinking, coping Hmm. with emotions. Hmm. There are they listed 10 life skills Hmm. in their journal. Hmm. On this basis, the मतलब लाइफ स्किल बहुत सारी है. Hmm. लाइफ स्किल बहुत सारी है, लेकिन मैं उसको एक कहीं ना कहीं लिमिट कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर 10, 15, 20 लाइफ स्किल्स इन ऑटोबायोग्राफी से हमको मिलती है क्या. फॉर एग्जांपल जैसे हाइपोथेसिस जो मेरा है, रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज इनकलकेट सम लाइफ स्किल्स. बट आपने उसको, हाँ, आपने उसको स्पेसिफिक नहीं किया. अगर ठीक है, आपका हाइपोथेसिस तो वो बन गया, उसको चेंज नहीं कर सकते. सो आई गॉट इट. तो बेसिकली आपका इसमें जो थ्योरी आएगा, वो थ्योरी आएगा लाइफ स्किल का थ्योरी. लाइफ स्किल्स का. ये थ्योरी दुनिया में सबसे पहले किसने बनाई, राइट? वो Yes. कोई शख्स होगा जो आपको गूगल स्कॉलर पे मिलेगा, पक्का मिलेगा. बहुत ढूंढेंगे तो मिलेंगे. 10 पेपर Google. पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका नाम आएगा. मैं सब कैंडिडेट को बताना चाहता हूँ, मेरा जो सीक्रेट है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं एक अच्छा पेपर पहले ढूंढता हूँ. मैं सब पढ़ता नहीं. आई ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट पेपर एंड आई नो हाउ टू गेट इट. एंड वंस आई गेट दैट पेपर, उसमें जो बिब्लियोग्राफी होती है या रेफरेंस होते हैं, वो मेरे लिए खजाना होते हैं. बिकॉज द बेस्ट विल ऑलवेज टेक द बेस्ट रेफरेंसेस, एंड फ्रॉम द बेस्ट यू गेट इवन मोर बेस्ट. सो अगर मैंने मोहम्मद शोएब का पेपर डाउनलोड किया, तो मुझे पता चला मोहम्मद शोएब के पेपर में 20 रेफरेंसेस थे. उसमें के मैंने 15 लोगों के डाउनलोड किए तो मेरे को और 300 मिले. उनमें से और 20 किए तो और 600 मिले. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द बेस्ट पेपर. उसके लिए हफ्ता भर भी जाने दो. एक बार वो मिला कि मैं उसके पूरे रेफरेंसेस खंगालूंगा सबसे पहले, और रेफरेंसेस खंगालने का सीधा उसको पीडीएफ में क्लिक करने का, ब्राउजर में पेस्ट करने का. वैसे को वैसा पेपर कहीं होगा तो आपको मिल जाएगा, राइट? सो हियर आपको वो लाइफ स्किल का कंसेप्ट लाने वाली वो बात, पहले वो थ्योरी. सेकंड थ्योरी,
लाइफ स्किल का जो आपने बोला WHO ने ये डाले, ये कौन से साल में डाले, वो डालने की जरूरत क्या थी, क्योंकि जमाना अभी बदलते जा रहा है इसलिए डाले, बराबर है ना, ये क्रिटिकल थिंकिंग हो गए, राइट। अब तीसरी बात आपको ये करना है, आपके ये जो 4 ऑटोबायोग्राफी है, आपको क्यों लगता है कि ये लाइफ स्किल इनके लाइफ में होगी, जबकि लाइफ स्किल जो WHO मैंडेट कर रहा है वो 21वीं सदी में काम में आती है, जिसमें से अभी दलाई लामा आपके अभी भी जिंदा है। तो Yes, आपको वो कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि स्पिरिचुअल लाइफ, फ्रीडम फाइटर लाइक गांधी, मंडेला और लिटरेचरिस्ट लाइक आपका, आपने जो भी नाम बोला, इनके लिए ये कैसे काम में आती है, आपको उसको उसे लिंक करने का है, राइट। और आप Yes. जब स्टडी करोगे तो आपको इंडिविजुअल में एक मैट्रिक्स बनाने का है, चौकोन मैट्रिक्स, और बताने का है मंडेला में ये लाइफ स्किल डोमिनेंट थी, गांधी में ये डोमिनेंट थी, दलाई लामा में ये डोमिनेंट थी। आपको उसके गोले गोले जो होते हैं ना, बड़ा गोला छोटा गोला, आपको वो सॉफ्टवेयर या एक्सेल या पीपीटी पे भी आप बनाओ, एंड देन यू से दैट आफ्टर रिव्यूइंग देयर बायोग्राफी 4 डिफरेंट लाइफ स्किल्स आर डोमिनेंट। और वो डोमिनेंट क्यों थी, उसका जस्टिफिकेशन, वो लाइफ स्किल की वजह से उनका लाइफ कैसा शेप हुआ, उनका सोसाइटी में कैरेक्टर कैसा शेप हुआ, और क्या वीकनेसेस थी। मैं ये नहीं कह रहा केवल लाइफस्टाइल, केवल पॉजिटिव चीजें बताओ, गांधी में क्या वीकनेस थी, मंडेला में क्या वीकनेस थी, तो उससे आपको, अगर उन्होंने ये लाइफ स्किल अचीव की होती तो उनका कैरेक्टर और 10 गुना बड़ा होता। सो आपको सर नेल्सन मंडेला की पूरी किताब, उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज है, उसके जितने भी सिनेमे है, और कोई अगर मिल गया आपको इसके ऊपर का, नेल्सन मंडेला का शायद जोहान्सबर्ग में या पिटोरिया में कहीं तो अच्छा स्टडी सेंटर होगा, जितनी जानकारी, मतलब आप उसका पूरा स्टडी करोगे लाइफ इन डेप्थ। चलो दलाई लामा से तो आप मिलने जा सकते हो धर्मशाला में, बट बाकी तीनों से तो आप मिल नहीं सकते। सो यू हैव Yes, टू sir. डू एक्सटेंसिव रिसर्च, और उसको सुंदर बनाना है। नहीं तो कोई अपना नागपुर छाप बोलेगा, अबे मोहम्मद तो टोपी पहना रहा है, साला 4 किताब पढ़ ली, छाप दिया पीएचडी थीसिस। बोलने के लिए तो ये बहुत सोपा है, और उसको अगर आपको रंग देना है ना बॉस, तो उसको आप इतना बेहतर कर सकते कि शायद कोई वो पढ़ के बोलेगा, एक आधा वाइस चांसलर, हाँ मैं भी इसमें से कुछ सीख के अपनी स्किल विल थोड़ी बढ़ा लूं। सो इट इज अप टू यू हाउ यू कैन जस्टिफाई द टॉपिक एंड हाउ यू कैन मेक इट ब्यूटीफुल। यू कैन ऑल्सो क्वांटिफाई दी स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूँ। से अगर चारों में से दोनों या तीनों में आपको एक कॉमन अगर अच्छी लगी, Yes. तो वो कौन से उनके मेजर इवेंट से वो जुड़ी थी, वो इवेंट का आउटकम क्या था, उसके ऊपर आपको सिंबॉलिकल स्कोर देना है। से महात्मा गांधी को 2 दिया, नेल्सन मंडेला को 3 दिया, और दलाई लामा को 5 दिया, और आपका जो भी है उसको 1 दिया। आप इसका वेटेड एवरेज स्कोर निकालो, मतलब ये 4 नंबर डिवाइडेड बाय 4, वो आ गया वो स्किल का इंडेक्स उस पर्टिकुलर आउटकम के लिए। ऐसे उनके लाइफ के 10 इंसिडेंसेस ढूंढो, और वो इंसिडेंसेस पे उनकी कौन सी स्किल का कितना इंडेक्स था। अबे छप गया पेपर, तेरे को मैंने यहाँ पे खुलजा सिम का फॉर्मूला बता दिया, तेरा क्वांटिफाइड हो गया रिसर्च। मतलब Yes, sir. तू ये बोलेगा ये स्किल का 2.5 इंडेक्स था तो महात्मा गांधी ने छक्का लगाया, इस ये स्किल का इंडेक्स 3.8 था तो दलाई लामा ने कॉट एंड बोल्ड किया। गॉट इट, मैं लैंग्वेज जंगल Yes, sir. क्रिकेट की Yes. यूज कर रहा हूँ। क्वांटिफाई इट। आप जितना सोचोगे, मोहम्मद साहब सवेरे उठ के केवल इसके बारे में ही सोचना, थीसिस के बारे में 5 Yes, साल sir. गॅरंटी से लिख के देता हूँ, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अपने आधे लोक सकाळी उठून नाकातला शेंबूड काढते, मग रडत रडत थीसिस लिहिते, आणि 5 किलो मिठाई घेऊन जाते वायवले, मग नाचते मला भेटली डिग्री म्हणून। नाकातला शेंबूड काही जात नाही। हाँ? ये स्टेटस है अपने रिसर्च का। आप जितने डेप्थ में जाओगे बॉस, उतने दरवाजे खुलेंगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप क्वांटिफाई करो, आप मेजर करो। मैं ये नहीं बोलता स्टैटिस्टिकल टूल डालो, करो, आप इंडेक्सेस बनाओ, उसके वैल्यू के पेपर लिख के WHO को भेजो कि सर मैंने पेपर लिखा, इसका क्वांटिफिकेशन मैंने किया है। आप देखो ज्यादा ज्यादा क्या वो फेंक देगा आपका पेपर, गलती से एक्सेप्ट हो गया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले होगी ना कि आपने इसको क्वांटिफाई करना चालू किया। फिर वो चीजें एजुकेशन में लाओ, कॉलेज लेवल पे लाओ, प्राइमरी लेवल पे लाओ। इसके स्पिल ओवर बहुत होते हैं, इसलिए ना एक अच्छा रिसर्चर कई सारी चीजें बदल सकता है, और हमें वो उम्मीद करना है कि
हम उसके आसपास जाए 5% ही, हम 95% तो अच्छे हो नहीं सकते, मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ, बट मैं 5% तो पक्का जाऊंगा उसके पास कि आपको आनंद आएगा कि हाँ ये काम मैंने किया, ऐसी सोच। यू कैन थिंक लिमिटलेस, इनोवेटिवली। 10 लोगों को मिलो, 15 लोगों से डिस्कस करो, अच्छे लोगों से, मैं ये नहीं बोलता हूँ फालतू लोगों से डिस्कस करो, और देन देखो इसके ऊपर काम हुआ है क्या, कैसा हुआ है, आपको ऐसी डायरेक्शन मिल जाएगी। वो इट इज योर टॉपिक इज लाइक अ पत्थर, उसको आप हीरा कैसे बनाते हो वो आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। आहे का रे कोणी अजून? मा गळा सुकून गेला बोलून बोलून थंडीच्या दिवसात। सर मैं कुछ हाँ पूछूं? पूछो। सर मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एंड एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ सीएमआर मटेरियल। तो इसमें सर मुझे प्रॉब्लम जो आई, सीएमआर मतलब क्या है पहले बताओ मुझे। कोलोजल मैग्नेटिव रेजिस्टिव सब्सटेंस है सर, जिसकी रेजिस्टिविटी जो है इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे चेंज होती है हाँ। टेम्परेचर के साथ, तो उसकी स्टडी करना है। तो मैंने जो सब चूज किया है लैंथनम के साथ में LA और लैंथनम मैग्नाइट MnO3 के साथ किया है। तो LA को मैं सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ CE के साथ, BA के साथ, और ये परवस्काइट है सर। तो एक मैंने LaVO3 भी बनाया, लेकिन मैंने वो कोशिश की तो उसमें ब्लास्ट भी हुआ और फिर मुझे रिजल्ट उसके नहीं मिले, वो डबल फेज में आया। और फिर मैं साथ में लिखना भी शुरू की, क्योंकि जो भी गाइड ने कहा कि साथ में लिखना शुरू करो। तो सर मुझे जो प्रॉब्लम आई, गाइड तो अच्छे हैं लेकिन उतना समय नहीं दे पाते हैं कभी कभी। तो मैं किसी से पूछी तो उन्होंने मुझे बहुत जोर से डांट दिया कि तुमने इतना सारा पेपर कलेक्ट किया है लेकिन पूरा फालतू बेकार किया है करके, इसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा नहीं है, ये है वो है। तो मैं तो नई थी, मतलब मैं पहली बार PhD करी, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझा कि इम्पैक्ट फैक्टर कैसे चेक करते हैं और कैसे पता चले कि जो पेपर मैं देख रही हूँ वही बेस्ट पेपर। जैसे अभी आपने कहा कि मैं इतने सारे पेपर देखता हूँ और उसमें से बेस्ट पेपर सिलेक्ट करता हूँ, जिससे मुझे बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस मिल जाते हैं। और उसमें एक टेक्निक होती है, जैसे हम लोग, हाँ पूछो, और कुछ है क्या आपको उसमें एडिशन? यस सर, एक ये भी कि जैसे अभी आपने कहा कि 2005 के बाद के लगभग पेपर होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो जब मैं मेरे टॉपिक पे जाती हूँ LACA MnO3 के लिए, तो मुझे 2005 मतलब इतने ज्यादा पेपर नहीं मिले, मुश्किल से 3-4 पेपर मिल रहे हैं। और पुराने मतलब इसमें बहुत कम मुझे लिटरेचर सर्वे मिला है, पेपर्स कम मिले। और अगर मैं ओवरऑल ऐसे जनरल दे रही हूँ तो मुझे पुराने बहुत ज्यादा पेपर्स मिल रहे हैं। जैसे सिर्फ CMR का इंट्रोडक्शन, CMR क्या है, फिर उसके बाद वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 2005 के बाद के पेपर्स कम हैं और उससे पहले के ज्यादा हैं। तो फिर ऐसे केस में क्या करूं? नहीं, अभी ना देखो इसमें दो चीजें हैं। जी सीएमआर का हिस्टोरिकल क्या है, डिस्क्रिप्टिव डेटा पुराने पेपर से आप ले सकते हो। यस आप सर। अगर बोल रही है कि 2005 के बाद के पेपर नहीं है, तो उससे दो इन्फ्रेंसेस निकलते। एक, आपको हाँ पेपर मिल नहीं रहे, या दो, यस आपका टॉपिक ऑब्सोलीट है। वो हाँ आपको ही मालूम है, आपको ही हाँ मालूम है कि वो कैसा टॉपिक है, क्योंकि उस पर काम नहीं हो रहा होगा, या नया बहुत है सर। डिफिकल्ट होगा, या फिर डिफिकल्ट टू अचीव होगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ बेस्ट पेपर कैसा देखने का। जी सर। आपका है, मैं उसको कहूंगा ओवरलैपिंग साइंस में आता है, आपका फिजिक्स में भी आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आता है, करेक्ट अच्छा यस सर। है ना? फिजिक्स हाँ एंड इलेक्ट्रिकल का इंटरफेस है इसमें। तो यस सर। आपको जो भी आपका, जो आप CMR या जो भी आप फील्ड बोलते हो ना, वो जी सर। आप गूगल स्कॉलर में उसमें टॉप रेटेड जर्नल्स ऑन दिस, क्या जो भी CMR आप टाइप करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ जर्नल आती है। अब ये हाँ इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह वो छोड़ दो, हमको जी ये देखना है, जैसे हम जब सोशल साइंस का काम करते हैं तो हमको मालूम है टाटा इंस्टीट्यूट ये लीडिंग है, किसके हाँ जो भी पेपर आते हैं वो माने जाते हैं, और एक दो बॉडीज है जिनके पेपर हम मानते हैं, राइट? जी तो आपको, जैसे ये मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया, जैसे कंप्यूटर साइंस वालों का एक फोरम है दुनिया में, वो पूरा कंप्यूटर साइंस का जो भी रिसर्च हो रहा है उसका डेटा उसमें होता है। तो आपको पहले ये देखना है कि आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉपिक है उसका कोई जी फोरम है क्या दुनिया में, होगा। वहां पे जो करंट रिसर्च चल रहा है
वो रिसर्च के लिंक्स या उसका डिस्कशन वो फोरम में होता है। आप एक फोरम और काम की, हाँ, एक SSRN नाम की वेबसाइट है, उस पे जाइए, कौन सी सर? ssrn.com ssrn.com वहां पे जी जाके जी लॉग इन कीजिए, ये फ्री साइट है, और वहां पे हाँ हेल्प मांगिए कि मेरे को ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ चाहिए। वो आपको अच्छा 100% देते हैं, क्योंकि मैं भी उसको इस्तेमाल करता हूँ। उसमें अच्छा स्टूडेंट, प्रोफेसर, सब लोग होते हैं, और एक दूसरे हाँ की मदद करते हैं वो लोग। तो वो एक जी तरीका है, राइट। हाँ क्योंकि हाँ जी सर कैसा है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कई सारे सब फील्ड है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, उसमें भी कुछ फील्ड है, तो हर एक फील्ड का एक जर्नल होता है। तो आपको पहले वो जर्नल ढूंढना पड़ेगा, आपके फील्ड का सबसे अच्छा जर्नल कौन सा है। अब सबसे अच्छा तो मैं इम्पैक्ट फैक्टर तो मानता हूँ, पर वो मैनिपुलेट होता है, वो छोड़ दीजिए। बट आपको जनरली एक या दो जर्नल मिलेंगे दुनिया में। मैं ये, आपका यूनिवर्सल टॉपिक है ये, इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको भले ही रशिया में वो जर्नल मिला तो चलेगा, बट वो उस फील्ड का कमांडिंग जर्नल चाहिए, उसकी वो अथॉरिटी चाहिए। जैसे हमारे CSR में मिल्टन फ्रीडमैन ये अथॉरिटी था, ये एज लेट एज 1980, वो इसका बाप माना जाता है, तो हम उसी को लेके चलते हैं। उसके पहले भी कुछ नहीं है, पूरा उसके बाद का लिटरेचर अवेलेबल है। तो वैसे ही आपके फील्ड में कोई ना कोई गॉड फादर होगा एक, वो गॉड फादर से फिर स्ट्रीम चालू होती है। जैसे गोमुख से गंगा निकलती है ना, गंगोत्री से फिर गंगा बड़ी होती है, तो वैसा कोई गंगोत्री होगा, वहां से वो आपकी CMR की गंगा बड़ी होगी। वो आपको गंगा ढूंढना पड़ेगा, 7 दिन लगे, 8 दिन लगे, चलेगा। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पूछिए, किसी को मिलिए आपके टॉपिक से जो रिलेटेड कोई होगा, आपको अवश्य मिलेगा, आपको मदद मांगनी पड़ेगी। मेरा उतना ज्ञान नहीं तो मैंने आपको ढूंढ के दिया रहता, बट आपका टॉपिक देख के ही मेरी सांस आधी गायब हो गई। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपका टॉपिक, बट इट इज गुड। बट आप अगर ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है सर ढूंढने की कोशिश करूँ, वैसे किया हाँ, है, बस मैंने ढूंढे हैं पेपर, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो मैं अरे सही हूँ या गलत। दूसरों का ओपिनियन मत लो, अपने ओपिनियन देना वो तो तेरे तो फालतू है, अच्छा है। सर जानते उनका हो पीएचडी आप, हो गया है, उनका पीएचडी हो गया है छोड़ दो और ना, इसीलिए उनको कचरा लग रहा। अगर वो जेन्युइन होते तो वो आपको मदद करते हैं। और बहुत आप डाटा भी कि मतलब अरे कैसे ये छोड़ो, हो। उसका नंबर दे देना, मैं देखता हूँ उसको अगले बार। नहीं हाँ नहीं ठीक है। हाँ, तो हाँ ठीक हेल्प करना चाहिए, आपको हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लोगों के ओपिनियन पे मत जाओ, लोगों का काम है कहना। जी फोकस रहिए, आप सोचते रहोगे तो आपको राह मिलेगी, पक्की मिलेगी। तो जी आपको सर ढूंढना पड़ेगा वो फील्ड में, ठीक है। ठीक है जी सर थैंक यू। थँक यू. हो वाजले हेलो रे 1:26 विचार एक प्रश्न लवकर. हेलो हेलो सर। हाँ, बोलो. सर मैं प्रिंस गर्मीर बोल रहा हूँ सोशियोलॉजी हाँ, जी. डिसिप्लिन से। सर मेरा स्टडी टॉपिक है सर, रिसर्च टॉपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द सोशल एजुकेशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द फैमिलीज ऑफ स्मॉल होल्डिंग। हम्म, सर सर एक्चुअली इसके थ्योरेटिकल फ्रेम में रीड करते समय हम्म, मैं 2-3 बातों से आया सर उसमें, जिसमें एक मैक्स वेबर की थ्योरी है लाइफ चांसेस हम्म, एंड क्लास सिचुएशन एंड लाइफ चांसेस। हम्म, तो वो पढ़ने के बाद भी सर उसमें और अलग अलग फ्रेम्स उसमें भी मिलती है, जिसमें थ्योरेटिकल फ्रेम में जैसे कि रिलेटिव डेप्रिवेशन और इनइक्वालिटी को लेके है, हम्म, या फिर कल्चर ऑफ पॉवर्टी की है जो लुइस, हम्म, हम्म, और कल्चर ऑफ एक्सीलेंस जो पियर बोर्डू की हम्म, है, और अमर्त्य सेन की जो है वो कैपेबिलिटी अप्रोच भी आती है। तो सर ऐसे अलग अलग जब फ्रेम्स मिलती है तो हम कौन सी ऐसे एक ब्रॉड फ्रेम कैसे फिक्स कर सकते हैं जो हमारी टोटल रिसर्च स्टडी के लिए एक बड़ा बेस बना सके। हम्म। अब कैसा है गंभीर साहब, जी सर। आपका जो टॉपिक है ना, जी सर। मेरा 99% काम मैं इसी के ऊपर करता हूँ, जी ह्यूमन सर। डेवलपमेंट पे। जी सर। अब इसमें से जो आपने नाम लिए, मेरे लिए मेरे गॉड फादर है अमर्त्य सेन. जी सर। The question why Amartya Sen, again Human Development Index was challenged, criticized यस by many, but adopted by UNDP. And Amartya Sen professor got the Nobel Prize for that यस सर। concept. He and यस his Pakistani counterpart. Right? Now, यस सर। the offshoots which you mentioned there, deprivation, inequality, what Amartya Sen said was about the choices in यस सर। his. Huh? यस So सर। you can take all these things. Now, इसमें प्रीलिवन क्या है? Preliminary will be given to Amartya Sen because it's a new thought process.
हमेशा ओके सब लोग ध्यान में रखो, लिटरेचर में अगर 2012 में किसी को नोबेल मिला है उस टॉपिक पे और आपको एक पेपर 1980 में मिला, वो भी लगभग वैसी बात कर रहा है, तो आप प्रेफरेंस नोबेल लॉरेट को देंगे क्योंकि वो नई सोच है, उसी को लिटरेचर आगे जाना बोलते। आप अगर बोलोगे कि 2017 का लिटरेचर खराब है और 1958 का सही है, ये टेक्निकली गलत हो सकता है। ये लिटरेचर आगे जाता मतलब क्या, अमर्त्य सेन ने इसी को थोड़ा आगे किया। अगर आप पीछे जाके देखोगे, इंडिया में तेंदुलकर कमेटी एंड कौन थे वो टोपी वाले, उनका नाम, पहले हमने पॉवर्टी मेजरमेंट का काम चालू किया इंडिया में, हाउ टू मेजर पॉवर्टी। अभी भी 2 साल पहले जो नोबेल मिला वो पॉवर्टी पे मिला, आपको उसका भी नाम डालना है, मेरे को याद नहीं आ रहा उनका नाम, वो जो इंडियन प्रोफेसर जिसकी फ्रेंच वाइफ है, उसको नोबेल मिला। पॉवर्टी कैसे गिनते, ये सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड फॉर्चुनेटली इज इंडियन विद अ फ्रेंच वाइफ, दोनों को मिला, हस्बैंड वाइफ को नोबेल। तो अमर्त्य सेन के बाद वो आता है क्योंकि उसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के ऊपर काम किया है। तो आपका टॉपिक इज लाइक अटलांटिक एंड पैसिफिक एंड इंडियन ओशन कंबाइन है। अब आप कर रहे हो काम 5 साल के लिए बॉस, इसके ऊपर यस मैंने सर पूना यूनिवर्सिटी के 4 पीएचडी थीसिस मैंने खुद देखे, मैंने खुद वाइवा लिया था एज ए एक्सपर्ट करके, अभिजीत एग्जामिनर बैनर्जी के। सर हाँ, अभिजीत बैनर्जी साहब। सो यस सर बैनर्जी प्लस अमर्त्य सेन, ये फोर फ्रंट पे रहेंगे आपके। बैनर्जी ओके विल बी ओनली इन दी पॉवर्टी थिंग, यस Abhijit will only be in the so-called choices, and यस the remaining what you mentioned about the inequality and deprivation. Deprivation यस is another big issue. हाँ? यस सर तो यस सर आपके लिए लिटरेचर का महासमुंदर उपलब्ध है, बट आपको पिक एंड चूज करना है जी जो सर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे इतना सब लोगे तो यस सर शांति से आपको पिन पॉइंट करके एलिमिनेट करते जाना है जो अननेसेसरी, राइट। यस सर करो, अच्छा काम करो बेटा। जी सर जी सर हा. भाऊ 3 वाजले आता, आपण उद्या भेटू। मॅडम उद्या किती वाजता भेटायचं, मला आता भूक लागली आहे। प्रीती मॅडम येस सर येस, उद्या पण उद्या सेम किती वाजता, टायमिंग, उद्या पण सेम 10:30 ते टायमिंग 1:30 ना? 10:30 हा. ते 1:30. हा. बाकीचे प्रश्न उद्या विचारा, मला हो भूक सर हो. लागली, 1:30 वाजले, आपण उद्या भेटू। येस सर येस. उद्याची लिंक वेगळी राहील की हो अशीच सर, राहील? मी आज रात्री पाठवेल उद्याची लिंक. ठीक आहे। ओके ओके. चलो, थँक्यू सो मच थँक्यू सर. थँक्यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज अपने सेशंस यही तक है, 1:30 बजे तक। अभी आप लोग अपना बाकी का टास्क कर सकते हैं। किसी को और कुछ पूछना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में वगैरह, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है